Hello students, welcome you all to our third session of our chapter number 13, that is magnetic effects of electric current. Students, we have started this chapter and we have discussed some topics in this chapter. In the previous session we discussed many rules also. So let us continue with this chapter with the furthermore topics. Okay students? Our today's first topic is electric motor. Okay, first of all, what do you mean by an electric motor? An electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. An electric motor is actually it is a rotating device that converts electrical energy into mechanical energy. Electric motor is used as an important component in many devices like electric fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, MP3 players, etc. So let us see what is its principle, its construction and working. Okay, we have seen the definition, we will see its principle, then construction and then working. Okay, first of all let us see its figure. You can see this figure students, this is the figure of an electric motor. You can refer to figure 13.15 on page number 232 of your NCERT टेक्स्ट बुक. ओके क्योंकि अब मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो स्क्रीन पे ये फिगर नहीं होगा, तो आप लोग टेक्स्ट बुक का वो फिगर निकाल के देखना. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर द principle and then again we will come to the figure. Okay students, what is the principle of motor? An electric motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field, जब एक rectangular coil को magnetic field में रखेंगे and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously. ये तो हमने प्रीवियस सेशन में किया था ना, उसमें एक कंडक्टर को जिसमें करंट पास हो रहा था उसको एक हॉर्सशू मैग्नेट में रखा था हमने, तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा था. तो वैसे ही वी आर कीपिंग अ रेक्टेंगुलर कॉइल in a magnetic field and current is passed through that rectangular coil, so a force will act on the coil due to which it will rotate continuously. So this is the principle of electric motor. Now let us go for the construction of this electric motor. Okay, so you can see that there is a rectangular coil. Okay, इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरफ से नॉर्थ पोल और एक तरफ से साउथ पोल है. ओके, एक रेक्टेंगुलर कॉइल और इसका नाम हम ABCD दे देते हैं एज गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक. ओके, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विथ व्हाट? दे आर कनेक्टेड विथ टू स्प्लिट रिंग्स P and Q. प्लीज रेफर टू द NCERT टेक्स्ट बुक. ओके, उसके जो कॉइल के जो दो एंड्स है वो दो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है P and Q. The inner side of these split rings are insulated and they are attached on an axle. Okay, split ring को एक circular axle, एक cylindrical shape में देखो axle है, उसके ऊपर रखा गया है. And these split rings are connected to two stationary brushes X and Y. आजू बाजू दो stationary brushes है X and Y. Okay, split rings जो है P and Q है, X and Y are stationary brushes. So this is the construction and then this wire is connected to a battery. Okay, this wire is connected to a battery so that current can be passed through the battery. So इसमें क्या क्या चाहिए? एक rectangular coil, two split rings P and Q, okay, a cylindrical axis, then brushes X and Y, connecting wires and then a battery. Okay, so let us see now the working of this electric motor. Okay, so you can see here when electric current passes through a coil in a magnetic field, okay, the magnetic field produces a torque. Torque is a force. Torque is a force which turns the electric motor. ओके, जैसे ही इसमें से हम करंट पास करेंगे, सीधा रेड लाइन्स करंट आपको दिखा रहा है ना, तो जैसे ही AB साइड में आप टेक्स्ट बुक जब देखोगे तो आपको AB दिखेगा. ओके, AB साइड में जैसे ही करंट पास करता है और वो पास होकर CD की तरफ जाता है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन? फ्रॉम बैटरी टू द ब्रश X, from there to the AB side, then from there to BC to CD, and from there to the brush X, and then again to the battery. This is the direction of the current. So when you can see that AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. So the force acts on this coil. The force acts on this coil due to which the side AB,
the side AB will be pushed downwards and CD will push upward. On applying Fleming's left hand rule, which rule we are applying? Fleming's left hand rule for the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downwards while the force acting on arm CD pushes it upwards. स्टूडेंट्स ये आर्म ए बी सी डी कहाँ से आया? तो ये मैं फिगर 13.15 देख रहा हूँ पेज नंबर 232 में. अब वो फिगर को देखकर आप डिस्कस करेंगे. ओके, क्योंकि हम लोग इस कॉइल में से करंट पास कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो कॉइल के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू विच द आर्म ए बी इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड आर्म सी डी इज पुश्ड अपवर्ड. इसके कारण कॉइल का हाफ रोटेशन हो गया. दस द कॉइल एंड द एक्सेल ओ माउंटेड फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सेल है ना, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. अब क्योंकि हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाता है, वैसे पहले क्या था दैट द स्प्लिट रिंग P इज कनेक्टेड विद ब्रश X and the split ring Q is connected with brush Y. But due to this half rotation, now the Q ring is connected with brush X and the P split ring is connected with brush Y. Okay, P वाला जो रिंग है वो Y के साथ कनेक्ट हो जाता है और Q वाला X के साथ due to this half rotation. So the direction of current will be reversed. Now the current will flow in the reverse direction from DCBA. DCBA. Okay, तो किसके कारण ये जो है करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया? Due to the split rings, and so the split rings are called commutator. Why they are called commutators? Because a device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator. Okay, वो डिवाइस जो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है उसको कम्यूटेटर बोलते हैं. और हमारे इस फिगर में कौन करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है? ये स्प्लिट रिंग्स. सो द स्प्लिट रिंग्स एक्ट्स एज कम्यूटर इन दिस कम्यूटेटर इन दिस इलेक्ट्रिक मोटर. स्प्लिट रिंग्स अपनी डायरेक्शन चेंज करके करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट स्प्लिट रिंग्स आर एक्टिंग एज अ कम्यूटेटर इन दिस इलेक्ट्रिक मोटर. द रिवर्सल ऑफ द करंट ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. एंड दिस टाइम द आर्म ए बी विल बी पुश्ड अपवर्ड एंड सी डी विल बी पुश्ड डाउनवर्ड. और इस तरह से एक पूरा कंप्लीट रोटेशन हो गया. पहले हाफ रोटेशन हुआ था, अभी एक फुल रोटेशन हुआ. सो इन दिस वे आफ्टर ईच हाफ the direction of the current is reversed and so the coil also rotates in a half rotation. तो इस तरह से कॉइल जो है कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है और करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है. ओके, ड्यू टू विच द कॉइल रोटेट्स कंटिन्यूसली एंड द मैकेनिकल वर्क कैन बी डन विद दैट रोटेटिंग कॉइल. क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है ही क्या? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, सो बाय दिस वी हैव सीन द definition of electric motor, then we have seen its principle. उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप डिटेल में टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो फॉर इलेक्ट्रिकल generator. Before that we have to discuss a phenomena called electromagnetic induction. Let us discuss that phenomena. Let us discuss the topic electromagnetic induction. Okay, it is given by Michael Faraday. Okay, what is there in this topic? The motion of a magnet with respect to a coil or a change in the magnetic field induce a potential difference in the coil and produces induced current. This is called electromagnetic induction. कैसे लग रहा है डेफिनेशन? नहीं, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सी स्टूडेंट्स, यू हैव अ कॉइल विथ यू, स्टेशनरी कॉइल है, एंड यू हैव अ मैग्नेट, स्टेशनरी मैग्नेट विथ यू. दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख दो. Okay, and connect that coil with a galvanometer. What is a galvanometer? A galvanometer is a device which shows the presence of electric current. थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट अगर कॉइल में से पास होगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट करेगा, जो हमको बता देगा कि करंट कॉइल में से करंट पास हो रहा है. सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास एक कॉइल है और एक मैग्नेट है जो दूर दूर रखे हुए और स्टेशनरी है. तो व्हेन वी लुक एट द गैल्वेनोमीटर देयर इज नो डिफ्लेक्शन, मीन्स नो करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल. ओके, नाउ ट्राई टू मूव. मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप पहले मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सुनो. ट्राई टू मूव द कंडक्टर टूवर्ड्स द कॉइल, है ना. कंडक्टर जो है उसको थोड़ा सा कॉइल के पास में लेके जाओ. तो जैसे ही आप कंडक्टर को कॉइल के पास में लेके जाओगे तो आप देख सकते हैं दैट इन द गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर इज मूविंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन. सपोज हम मान लेते हैं कि पॉइंटर अभी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है. ओके,
तो नाउ व्हाट यू डू, नाउ यू डू टेक अवे दैट मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। जो हम लोग पहले एक तरफ अंदर की तरफ आ रहे थे, अब कॉइल उस मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाओ, तो यू विल सी दैट द डिफ्लेक्शन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इट shows that when the conductor is moving towards the coil or it is moving away from the coil, some current is flowing through the coil, और क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में से, उसकी वजह से ही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में। ओके, अब क्या करो, यू कीप द मैग्नेट स्टेशनरी एंड नाउ यू मूव द coil towards the magnet or away from the magnet. Then also you will see that some current is flowing in the conductor and due to which there is a deflection in the galvanometer. अब जब दोनों को स्टेशनरी रख दोगे ना, तो नो करंट इज फ्लोइंग, सो देर विल बी नो डिफ्लेक्शन। दोनों में से किसी भी एक को मूव करो, एंड इवन इफ यू मूव both towards themselves or away from themselves, there will be some current produced inside the coil, and this current produced is called induced current. The current which is produced inside the coil due to the relative motion between the conductor and the coil, okay, magnet and the coil, वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Students, lastly, once again I will say the definition of induced current and electromagnetic induction. The current produced inside the coil due to the relative motion between the magnet and the coil is called induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction. Okay students, I hope you understood what is electromagnetic induction. Okay, now to know the direction, to know the direction of the current produced in this electromagnetic induction, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, करंट, तो करंट का डायरेक्शन जानना हो तो वी हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो फार स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड 2 मोर रूल्स, हमने पहले डिस्कस कर लिए। एक था राइट हैंड थंब रूल, दूसरा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ वी आर यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो लेट अस सी नाउ Fleming's right hand rule. Okay, so we have to use our right hand and 3 fingers, thumb, forefinger and middle finger, keeping perpendicular to each other. Okay, perpendicular लगा दो। तो इसमें जो forefinger है, forefinger shows the direction of the magnetic field. Forefinger क्या है, direction of the magnetic field, and F is the direction of what, force or the motion. Okay, अगर फोर फिंगर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके, थंब शोज द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, ओके, थंब क्या है, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ द मिडिल फिंगर, जो मिडिल फिंगर का जो डायरेक्शन है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो व्हाई दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड, द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ओके, एंड व्हाट इज इट स्टेटमेंट, if the thumb, forefinger and middle finger of the right hand is held perpendicular to each other, अगर तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली अगर आप हेल्ड करते हो, such that the thumb points in the direction of motion of the conductor, the forefinger points in the direction of magnetic field, then the middle finger shows the direction of the induced current. Okay, thumb अगर आपका कंडक्टर का मोशन है, फोर फिंगर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो जो मिडिल फिंगर है वो आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। सो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना इज यूज्ड इन व्हाट, इन द डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। Let us see now what do you mean by an electric generator. An electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिक मोटर क्या था स्टूडेंट्स, एक बार याद करो। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, what is the principle of electric generator? Actually electric generator works on the principle of electromagnetic induction. एक स्टेटमेंट दे सकते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या तो इस तरह से बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। जब एक कॉइल को आप रोटेट करोगे सामने से आप उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रख के रोटेट करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा।
Okay, that is called electromagnetic induction. You can see the figure of an electric generator. Students, for this figure you have to refer page number 236. पेज नंबर 236 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, फिगर 13.19. फिगर आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करोगे स्टूडेंट्स. ये वाला पिक जो है इसका फिगर नहीं, आप टेक्स्ट बुक का ही फिगर ड्रॉ करेंगे. ओके, तो वंस अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रिंसिपल क्या था? इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट यूजेस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ओके, तो हमने इसका क्या क्या देख लिया. We have seen what is the definition of electric generator and we have seen the principle of electric generator. Okay, now what is the construction of electric generator? Okay, what are its parts? तो पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर सेम जो इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स हैं ना वो सारे यहाँ पे यूज़ होंगे. परमानेंट मैग्नेट्स, गैल्वेनोमीटर क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू नो द करंट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ. देन रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉयल वी वांट, रिंग्स जो स्प्लिट रिंग्स थे, ब्रशेस, एक्सेल, वही सेम सारे चाहिए अभी हमको. ओके, तो नाउ पहले तो कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इट इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, वी हैव प्लेस्ड अ कॉइल ABCD इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस कॉइल इज कनेक्टेड विद द स्प्लिट रिंग्स. यहाँ पे R1 R2 दिख रहा है जो ब्रशेस B1 B2 से कनेक्टेड है. ओके, देन वी हैव at last connected the whole coil with the galvanometer to know the amount of electric current produced. Okay, तो ये उसका construction हुआ. Now let us see the working. When the axle attached to the rings in the is rotated, जब हम इसको सामने से रोटेट कर रहे हैं इस एक्सल को, ये एक्सल खुद ब खुद रोटेट नहीं हो रहा है, हम जब रोटेट करेंगे such that one arm moves up and the other moves down in the magnetic field produced by the permanent magnet. हमने यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है दोनों बाजू, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके अंदर हम लोग इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं. इसका एक हाफ हम अप मूव कर रहे हैं और दूसरा हाफ को डाउन कर रहे हैं. तो बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप इन दिस आर्म्स अलोंग देयर डायरेक्शन. वी ऑल नो दैट कि जब करंट कॉइल रोटेट करता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट. हमने देखा था ना जब कॉइल मूव कर रहा था तो करंट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर. ओके, तो ये जो करंट है वो क्या है? इंड्यूस्ड करंट. ओके, दस एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द डायरेक्शन ऑफ ABCD. कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ABCD. आफ्टर हाफ अ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद नाउ आर्म CD स्टार्ट्स मूविंग अप एंड AB अलोंग डाउन. पहले AB डाउन था, CD अप था, अब CD क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, AB मूव्स डाउन. एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म्स चेंजेस गिविंग राइज टू नेट इंड्यूस्ड करंट. ओके, पहले एक साइड अप था, दूसरा साइड डाउन था, अब दूसरा अप हो गया, पहला वाला डाउन हो गया, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है. सो बाय रोटेटिंग दिस कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन सी दैट कंटिन्यूसली करंट इज प्रोड्यूस्ड. ओके, टू नो द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस वी कैन सी इट इन द galvanometer. So that is the working of the electric current. Okay, now there are two types of electric current, AC current and DC current. ओके, AC करंट क्या होता है? द करंट विच कैन चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेट करंट. अभी हमने जो देखा था वो जनरेटर क्या था? वो AC था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? अलग अलग डायरेक्शन में, है ना, बार बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था. सो इट वाज एन AC जनरेटर. ओके, तो AC करंट क्या होता है? द करंट विच कैन चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड AC करंट, जो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता हो. ओके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू आवर होम्स, स्कूल बिल्डिंग्स, कंपनी बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो हमारे घरों में और स्कूलों में इन सब में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है? AC करंट होती है, विच रिवर्सेस इट डायरेक्शन आफ्टर एवरी सेकेंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स. ओके, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है ना वो हर सेकेंड अपना डायरेक्शन चेंज करता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? 50 हर्ट्स. अंडरस्टूड? Then most power stations in the world generate AC than DC. So this is because AC can be transmitted over very long distances without much loss of energy. AC करंट को लार्ज डिस्टेंस तक हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ मच एनर्जी. So AC current is mostly produced in many power stations. Now AC generator, after each half rotation, हमने जो देखा था ना अभी हमने, the direction of the induced current is reversed and AC current reverses its direction after equal time intervals. A machine with this arrangement is called an AC generator, जिसमें करंट का डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसके लिए इस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं? AC generator. This is the diagram of an AC generator.
ओके, जिसमें कंटिन्यूसली कॉइल जो है रोटेट होता रहता है और करंट का डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. Now let us discuss what is DC generator. The current which flows in only one direction and is an unidirectional current, it is called DC current. Okay, DC मतलब direct current जिसमें current एक ही direction में flow करता है. It is unidirectional. Okay, it flows in only one direction. Now direct current may be obtained from an alternating current by use of a current switching arrangement called a rectifier. By using a rectifier, we can change the AC current into DC current. Okay students. Now what DC generator क्या है? Moving first in one direction then in the other, each end of the coil is attached to a separate metal slip ring that rotates with the coil. Brushes that rest on the slip ring बोले या split rings बोले एक ही बात है. They are attached to the external circuit. Thus the current flows from the coil to the slip rings, then through the brushes to the external circuit. A machine with such an arrangement is called a DC generator. तो आपको स्टूडेंट्स इतना याद रखने का है that in DC generator direct current is produced. इसमें करंट जो है एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है. So it is unidirectional. So this generator is called DC generator. इतना आपको याद रखना है. Okay students. So by this we end our today's session students. We will continue with the new session in the next session and we will complete the chapter in that session. Okay, till then thank you students.